Why Eclipse Nova? बहुत ही weird story है. And that 1 year, it was like इतना pressure, इतना tension, so much of hair fall. I अरे like बाप 1 year I had my head shaved. 2 साल तो मुझे हमको मैं कन्वर्ट करने में लगा है. Creating a song for my potential girlfriend. Yeah. तो चलो गाने पे तो बाद में आएंगे, पहले ये बताओ उस गाने में कितनी पोटेंशियल है टू गेट योर गर्लफ्रेंड है? हाँ है. And you wanna confess your feelings to him, but आप कह नहीं पा रही हो. बट आप सारे हिंट्स दे पा रही हो. Been there, done that. बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. पहले दे दू वार्निंग, पार्टी चलेगी till 6 in the morning, जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल. This is an ABP Life podcast. मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ, मेरे जो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ. Perfect beginning for our podcast today. We have the amazing Eclipse Nova with us today, guys, on Bollywood Binge and Beyond. Hi Eclipse, welcome. Hi Niharika, thank you so much for having me. It is all my pleasure. आपके गाने I think पिछले कुछ महीनों में सुन के ही सबने reels बनाई हैं, and everyone has absolutely enjoyed all of your songs. So there wouldn't have been any better way of starting this conversation. Sure. And obviously I don't really need to introduce you, but still मैं आपका असली नाम जरूर बताना चाहूँगी because a lot of people are not aware of it. मुझे भी बहुत टाइम तक नहीं पता था. So this is Eclipse Nova aka दीपांशु राज. Yeah. So क्या पहले तो ये बताओ कि कॉन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में what should I call you? Eclipse या फिर दीपांशु? I think you should call me Nova. बहुत Nova? short है. Okay. Easy. As you say. So of course the first question has to be why Eclipse Nova? बहुत ही weird story है. मैं क्लास 9th में था. अच्छा. And that time I wanted a name जो कि easy to find हो सर्च करने पे. And that time मेरी मॉम के पास एक सिंपल सा फोन हुआ करता था जिसमें कि buttons वाला normal. Yeah, and I didn't know कि if there is any option to share link and all. I didn't know about it at all. So I was like कि if people look out for me on the internet, they will search for my name. Right. And if they search for Dipanshu Raj, there will be a lot of Dipanshu Raj in the world. True. So I thought there should be a name that is very unique, that has no meaning. And if people search for it, then only I should appear. And I was into astrophysics a lot. अरे बाप. तो मुझे सुपरनोवा से नोवा मैंने निकाला, फिर ऐसे लूनर इक्लिप्स से मैंने इक्लिप्स निकाला. So that's the story. काफी original idea, I would say, because and it's working. I would say क्योंकि मैंने भी पहले दीपांशु राज सर्च किया and काफी सारे आ गए. And Eclipse Nova only one. But इसके अपने flaws हैं इस नाम के, because when I was in college तो पहले 2 साल तो I used to face a lot of hatred. Because people used to think that कि अपने आप को over smart दिखाने के लिए, cool बनने के लिए नाम change कर रहा है. Plus every time I say my name, I have to tell them the spelling also. It's IQLIPSE. तो थोड़े drawbacks हैं, but ठीक. And बहुत लोगों ने अजीब तरह से इसको बोला भी होगा, गलत pronunciation भी होगी. IQ-lips, बहुत सारी चीजें. तो उस टाइम पे उनको correct करने का मन करता है या बस you have gotten used to कि ठीक है. इसलिए मैं नोवा बताता हूँ. It's very simple. Actually हाँ, नोवा को पढ़ोगे भी तो वो स्पेलिंग सही रहते. Exactly. तो आपका गाना मेरा सफर was the one that initially सबसे पहले जो वायरल हो गया था. So tell me about your suffer from IIT to music. How did it all happen? The music in me started very naturally. Like when I was a kid, I used to compose randomly. मुझे music का कोई knowledge, कोई sense नहीं था. Like मुझे कोई instrument play करना नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था. But मैं randomly melodies compose कर पाता था. अच्छा. जो कि I think naturally आ गया है. And then one fine day, I was watching this channel VH1 when I was in class 7, and Enrique Iglesias का एक concert आ रहा था. And I was like, what an amazing singer. इतनी सारी fan following, इतना amazing. And उसको देख के कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मुझे ये करना है. अच्छा, okay. But the place where I belong to, it's a small town called Katihar in Bihar. The only thing that you have to do is either UPSC or engineering, or you have to be a doctor, something like this. Right. So there was no any other option. And I thought कि अगर मुझे शहर से बाहर निकलना है तो और mom dad को convince करना है, the first thing that I have to do is to prove myself in studies. And thankfully I was great at that. Clearly you cracked IIT Delhi. Yeah. So मैंने अच्छे से exams दिया and made it to IIT Delhi. कॉलेज में आके when I started posting music on my YouTube channel, तो मेरे को लगा कि अब तो ठीक है, अब तो कोई टेंशन नहीं है. There's no one to stop me. I'll just post music and I'll
बी वायरल लाइक जस्टिन बीबर एंड ऑल. राइट. बट जब मैंने पोस्ट करना शुरू किया मुझे बहुत हेटेड मिला. अच्छा, ऐसा क्यों? एंड द रीजन वाज कि आई वाज नॉट गुड एट ऑल. उस टाइम में मुझे पता नहीं था. आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है यार, मैं गाने रिलीज कर रहा हूँ, लोग मुझे बहुत पसंद करेंगे. बट पीपल वाले कि क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है. एंड मुझे लगता था कि वो मेरे ईगो हर्ट कर रहे हैं, उनको मेरे से जेलसी हो रही है. बट विद टाइम आई रियलाइज्ड कि वो सही कह रहे हैं. आई नीड टू वर्क ऑन माई स्किल्स. देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ कॉलेज में ही. एंड फिर धीरे धीरे इंप्रूव करते गया. अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी क्लासेस लेता हूँ. एंड विद दिस धीरे धीरे सिंगिंग इंप्रूव होने लगी. एंड फिर लोगों को भी वो दिखने लगा. फिर आई रिलीज माई ओरिजिनल्स एंड वो पसंद आने लगा. एंड देन ऐसे आफ्टर लाइक 3-4 ओरिजिनल्स मेरा सफर केम. क्या बात है. So so you started classical training recently, a couple of years back. Yeah. So we were still in the process because 6 to 7 years exactly. लगते Yeah, हैं for उसमें. sure. Right. And क्योंकि IIT था तो ACADS was very hectic. Right, obviously. तो बहुत है ऑन एंड ऑफ हो गया था. Now when I'm fully into music, तो now I have the time जब मैं अपने आप को खुद से Right. और improve कर अपने सकूं. हिसाब से you can exactly. plan your life. Yeah. Right. So ये IIT क्रैक कैसे किया पहले तो ये बताओ. I'm sure that आपकी जितनी भी इंटरव्यूज होंगी ये किसी ने नहीं पूछा होगा. IIT क्रैक करने वाला जो फेज था ना, लाइक मैंने ड्रॉप लिया था 1 साल क्योंकि पहले अटेम्प्ट में हुआ नहीं था. Right. बट पहले अटेम्प्ट में आई वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन माय CBSE बोर्ड्स. Okay. ठीक है, तो माय पेरेंट्स वर लाइक कि बहुत इंटेलिजेंट है यार तू. एंड उस साल मैंने निफ्ट भी क्लियर किया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. तो फैशन में भी इंटरेस्ट था. फैशन में इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि आई फेल्ट कि फैशन इज वेरी क्लोज टू बॉलीवुड. Okay. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो आई थॉट कि अगर मैं उस कॉलेज में जाता हूँ Right. तो शायद इजी होगा मेरे लिए. बट लेटर आई रियलाइज्ड कि ऐसा कुछ नहीं है. मतलब इतना भी क्लोज नहीं है कि क्लोज नहीं है. प्लस इजी डिफिकल्ट भी बहुत सब्जेक्टिव चीज है. या एग्जैक्टली. एंड क्योंकि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स थे, पेरेंट्स ने बोला कि IIT के लेवल ट्राई कर लो. तो आई वाज लाइक ठीक है. फिर आई टुक अ 1 year ड्रॉप. आई वाज इन दिल्ली, इधर कालू सराय में रहता था मैं. हाँ. एंड कठवड़िया सराय में रहता था. कालू सराय में आई हैड माय कोचिंग. Okay. एंड दैट 1 year इट वाज लाइक इतना प्रेशर, इतना टेंशन, सो मच ऑफ हेयर फॉल. आई अरे बाप रे. 1 year आई हैड माय हेड शेव्ड. Oh like God. because there's so much of hair fall. and इतना ज़्यादा हेक्टिक था वो साल पूरा. क्योंकि आई फील वो जो फेज होता है ना, आपकी लाइफ सबसे ज़्यादा अनसर्टेन होती है. Right. क्योंकि ऑफ कोर्स आपके केस में फॉर एग्जांपल आप किस कॉलेज में जाओगे वो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड कर लेता है. बिल्कुल. सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी मच लाइक टेंस्ड. एंड वो एक डाउट कि यार मुझे बनना म्यूजिशियन है, गाने गाने हैं. एक साल ड्रॉप करके मेहनत IIT के लिए कर रहा हूँ. हाँ, और फिर मैं न्यूमेरिकल्स बना रहा हूँ. पसंद था मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बट बहुत ऐसे हेवायर्ड चीज़ें थी कि क्या करना है. बट ठीक है, फाइनली आई गॉट इनटू IIT एंड फिर चीज़ें बदलने लगी. बिल्कुल. सो IIT के एंड में वो प्रेशर नहीं आया कि अब तो IIT कर लिया, खत्म हो गई इंजीनियरिंग, तो अब इसी में रहना चाहिए. लाइक व्हाई स्टिल बैक टू म्यूजिक? So my entire goal was, the day I entered the college, was कि I'll try to do something out of my other skills like music, content creation and all that. And for a very long time channels and all मैंने बना लिए थे. I had already like 1 lakh subscribers when I was in 3rd year in college. 5 साल की मेरी डिग्री थी because it was dual degree, BTech plus MTech. अच्छा, okay. But still I was not making enough money back then कि मैं IIT के प्लेसमेंट को टक्कर दे दूं. एक तो कॉलेज भी था कि लाइक अगर कोई ऐसा कॉलेज होता कि 3 लाख की जॉब लग रही है तो हाँ चल ठीक है हो जाएगा. Right. बट क्योंकि वो IIT का एवरेज पैकेज तो एटलीस्ट मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तब जाके मैं पेरेंट्स को कन्विंस कर पाऊंगा कि नहीं मॉम डैड मुझे ये करना है. बट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल. एंड हुआ यूँ कि मुझे कोविड के टाइम फिर प्लेसमेंट में बैठना पड़ा. मैंने सोचा कि मैं बैठूंगा ही नहीं, इनफ आराम से कमा लूंगा कि मुझे बैठने की जरूरत ही ना पड़े. बट ऐसा हो नहीं पाया. Right. प्लेसमेंट में मैं बैठा एंड प्लेसमेंट में बैठने के बाद मुझे जॉब भी मिल गई. अच्छा. हाँ, आई गॉट 2 जॉब ऑफर्स. क्या बात है. एंड दोनों अलग अलग कंपनीज थी. वन वाज केमिकल इंजीनियरिंग का कोर कंपनी डॉक्टर रेड्डी. Oh, that is amazing यार. Yeah, and दूसरा was some business development profile in some company in गुड़गांव. अच्छा, okay. तो दोनों मिल गई थी, मुझे एक चूज करना था. एंड मेरे पास 6 महीने का पीरियड था. Right. बिकॉज वो एक सेमेस्टर पहले हो जाता है. तो 6 months था जिसमें कि मुझे अपनी ऑनलाइन MTech की डिग्री खत्म करनी थी क्योंकि कोविड था. एंड उस 6 months में मैंने क्या करा कि मैं मुंबई चला गया. अच्छा, तो मतलब काम भी पढ़ाई भी सब कुछ एक साथ. तो लाइक 6 महीने बचे हैं, बस 6 महीने देखते हैं क्या हो सकता है. 6 महीने में पैकेज हमें अगर मैच कर पाऊं एग्जैक्टली तो लाइफ चेंज हो सकती है. वरना फिर गुड़गांव में मैं मिलता, फिर मैं यहाँ शायद आता भी नहीं. आई डोंट नो. या प्रोबेबली या एक्चुअली. फिर मैं मुंबई गया एंड मुंबई में आई मेट दिस podcaster Ranveer Alabadia. So I knew him from college time because he has visited my college when I was in college 3rd year. He was a guest, I was the host. Nikhil Paralikar told me this. He came for an interview, a podcast episode with me, and he told me that he, along with
Ranbir Alabadia, they were a group of people who have visited IIT Delhi. अच्छा, And उस time पे you were one of the core team members for a particular fest. So ये चीज उन्होंने मेरे को बताई थी उस time पर, and now look at you. Yeah, I know. And रणवीर ने मुझे उसमें बोला था, उस मेरे व्लॉग में भी, I made a vlog that day, I made a vlog and he has said this in the vlog that placement की जरूरत नहीं पड़ेगी तेरे को. क्या बात है. So I went to Mumbai and then we started this company together. It's a content startup and many things that happens around it, like production and all that. एक साल बस उस 6 महीने में I was totally into that company, doing whatever it requires to manage the team and everything. Plus I was growing my vlog channel, plus making music and all that. Right. And उस 6 महीने में ऐसा हुआ that the vlog channel that I had, it picked up so much that the amount of money that I was getting out of brand deals and all that, it was able to match my college का placement package. Amazing यार, this is ना अब कर लिया वो 6 महीने में करके दिखा दिया. And many people think ना कि बहुत ऐसे drastic step रहा होगा mom dad को convince करना या फिर कैसे risk ले लिया, because they think ना कि मैंने किसी high package को छोड़ के less में settle कर लिया, वैसा है ही नहीं. तो मेरे लिए बहुत हमने मेहनत करके वो पैकेज मैच कर लिया. Exactly, तो मेरे लिए बहुत easy decision था वो लेना. But that's why it was very easy to say no to the job. Right. And then I stayed in Bombay for the last 2 years. I'm there. Okay. Yeah. And you said that you are from Bihar originally. Yeah. So वहाँ से you came to Delhi for college. Yeah. वो cultural change कैसा था? 2 साल तो मुझे हमको मैं कन्वर्ट करने में लगा है. तो अभी भी लाइक माई हिंदी इज नॉट दैट ग्रेट. एंड क्योंकि बिहार में ना हिंदी का ये कॉन्सेप्ट है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता. ट्रेन आता है. ठीक है, तो अभी भी मेरा ट्रेन कई बार आ जाता है. तो दैट्स द थिंग दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद. बट ठीक है, प्लस स का श ड़ बोलना नहीं आता मुझे आज तक. बहुत सारे गानों में मल्टीपल टेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि मैं तू आगे बढ़ता जा रे कोई जाड़े मैं बोल देता हूँ कई बार. तो बहुत स्ट्रगल्स हैं. So these are the struggles that I'm like trying to get over. And how was the Delhi experience overall? Amazing, and I love Delhi so much. I'm saying loved because now I love Mumbai more. Oh, तो ये वाली डिबेट अभी आपके दिमाग में भी है मतलब क्लियरली कि दिल्ली या मुंबई बेटर है. अरे यार ऐसे मत बोलो यार. I am a true blue Delhiite. मेरे सामने how can you been to Mumbai? I have. Still, for how long have you stayed there? There are things मतलब जैसे मरीन ड्राइव टाइप की चीजें, बीच, वो चीज तो खैर दिल्ली कभी कंपेयर नहीं कर सकते. बट यार दिल्ली इज दिल्ली यार. इट इज ट्रू, बट मुंबई का बेस्ट पार्ट इज ना कि रात को इट्स अमेजिंग. हाँ, वो दिल्ली की रात तो तुम देखिए, हम जैसे लड़के तो देख नहीं सकते, बोल दो. एग्जैक्टली. नाइट लाइफ है दिल्ली की, हमारे लिए नहीं है. वही सैडली सो. वही एग्जैक्टली. तो एंड मुंबई का ना कहीं पे भी चले जाओ, रात को भी सेफ, कोई टेंशन नहीं है. एंड इट्स नॉट अबाउट, मैं उस सेफ्टी की बात तो कर ही रहा हूँ, बट साथ में ये भी कह रहा हूँ ना कि द इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक दैट कि यू वोंट फील कि ऐसे बहुत अंधेरा हो गया, बहुत शेडी सा जगह है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है तो हर जगह घर है, हर जगह चीज़ है. तो इसलिए इट फील्स लाइक कि लोनली नहीं फील होता. आसपास लोग हमेशा दिखते हैं. लोग होते हैं. या तो दैट्स व्हाई इट्स बेटर. राइट. एंड टॉकिंग अबाउट मेरा सफर, कैसा लगा था जब फर्स्ट टाइम अपने आसपास लोगों को गाते हुए सुना था ये गाना? बहुत ही अजीब फीलिंग थी क्योंकि बचपन से ये देखा है कि जस्टिन बीबर का सॉन्ग वायरल हो गया, गजेंद्र वर्मा का वायरल हो गया, तो पता नहीं था कि ऐसे वायरल हो भी सकता है. तो मेरे केस में पहले 3 महीने तक ना सॉन्ग पे यूट्यूब पे 4 लाख व्यूज आ गए थे. एंड वो मेरे बाकी किसी भी सॉन्ग के से थोड़ा ज्यादा था इतने टाइम ड्यूरेशन में. आई वाज वेरी हैप्पी कि वाह भाई 4 लाख व्यूज आ गए, मस्त पैसा वसूल, गाना बना दिया हमने, कोई टेंशन नहीं है. उसके बाद अचानक से ना इंस्टाग्राम पे धीरे धीरे उस पर रील्स बनने शुरू हो गए अपने आप, पता नहीं कैसे. ठीक है, बिकॉज आई फील द सॉन्ग वाज वेरी ट्रैवल फ्रेंडली, हैप्पी मूड, जॉली. तो लोगों को रिकमेंड भी कर रहा होगा जो भी ट्रैवल के लिए सफर वगैरह सर्च कर रहे होंगे ना, तो उनको रिकमेंड कर रहा होगा. तो धीरे धीरे रील्स बनने लगे. और चलो ठीक है, हाँ रील्स बन रहे हैं, 1000 रील बन गए, ठीक है, 50,000 बन गए, 1 लाख बन गए देखते देखते. अरे बाप. एंड वो एक टाइम ऐसा आया था ना कि हर टाइम जब मैं फोन खोलता था कोई बड़ा सेलिब्रिटी रील बना रहा है, किसी के रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं. सचिन तेंदुलकर ने रील बना दिया. सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, अरे मतलब कुछ भी चल रहा था उस टाइम पे. तो एवरी टाइम आई यूज्ड टू ओपन माय फोन, वो इतना ज्यादा एड्रेनलिन रश मिलता था कि अब बाकी चीजें मेल नॉर्मल हो गई हैं. तो जब तक कोई और गाना उस लेवल पे नहीं जाता तब तक यही टॉप पे रहेगा. हाँ, इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, अभी कोई गाना अच्छा परफॉर्म भी कर रहा होता है, इट्स लाइक हाँ ठीक है, मेरा सफर लेवल पे तो नहीं गया. दैट्स द थिंग. राइट. एंड किसी सेलिब्रिटीज का या बड़े कंटेंट क्रिएटर्स का मैसेज आया उस टाइम पर? एग्जैक्टली. हाँ, बहुत सारे लोग आया था, बहुत सारे लोग आया था. ऐसे मुझे नाम याद नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत सारा आया था. टीवी एक्टर्स, सब मतलब सारा जॉनर ही मिक्स था. क्रिकेटर्स, टीवी एक्टर्स, कुछ वो टाइम ही वही था. आई स्टिल रिमेंबर कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते हर दूसरी रील मेरा सफर, हर दूसरी रील मेरा सफर. एंड देन एवरी फोर्थ रील वाज यू डांसिंग ऑन इट. या मैंने तो बहुत कैपिटलाइज करा है, बहुत ज्यादा. आई वाज लाइक कि
ये मौका दोबारा नहीं आने वाला नहीं है। आएगा। तो जितना ज्यादा मैं रील्स बना सकता हूँ मैं बनाऊंगा। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो वायरल भी मेरे पहले रील से हुआ था, इन विच आई वाज डांसिंग इन द रेन। राइट सो राइट। दैट वाज द रील दैट वेंट वायरल फर्स्ट। एंड जब म्यूजिक वीडियो इसका शूट किया वो एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज रिकॉर्ड तो पहले कर लिया होगा गाना डेफिनेटली। इसके 2 म्यूजिक वीडियोस थे। तो एक म्यूजिक वीडियो में तो जो मेरे चैनल पे है दैट्स माय स्टोरी, राइट। जिसमें कि मैंने दिखाया हाउ आई वेंट इनटू आईआईटी, गॉट इनटू आईआईटी, देन हाउ आई डिसाइडेड टू बी इन मुंबई। Right. पूरी मेरी स्टोरी है। Right. दूसरा जो म्यूजिक वीडियो जो कि सोनी के चैनल पे है, दैट्स मी एक्सप्लोरिंग मुंबई। राइट। So that came after the song went viral. तो ये है म्यूजिक वीडियो की स्टोरीज की, दोनों अलग अलग टाइम पे शूट हुई थी, अलग अलग टाइम पे। एंड समथिंग जो मेरे को लेटली बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज अर्ली 2000s में हमने ये चीज देखी थी कि म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड हुआ करता था। हाँ, अब Then नहीं है। बीच में बिल्कुल डाई डाउन हो गया, बट अब आई फील थोड़ा फिर थोड़ा से सा स्टार्ट हाँ, होने लगा हाँ, है। हाँ। सो क्या लगता है ये दैट इज मच बेटर फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लाइक यू, या फिर डायरेक्टली बॉलीवुड इज अ बेटर थिंग टू गो फॉर? आई फील कि म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड अगर अभी आ भी रहा है ना, तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि आप बहुत ही अमेजिंग हाई क्वालिटी वीडियो बना दोगे तो ज्यादा चलेगा। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ टाइम जो कि हनी सिंह ने अपने इंटरव्यूज में बहुत बार बोला है कि मैं बाहर जाके शूट करता था, हाई क्वालिटी वीडियोस बनाता था। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्वालिटी से। द रीजन इज कि एवरीवन कैन मेक अ ग्रेट क्वालिटी वीडियो नाउ। राइट। बहुत ईजी हो गया है। तो अभी आप देखोगे ना कि जो ऐसे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस होते हैं, फॉर एग्जांपल रितवीज के वीडियोस देख लो, राइट। तो बहुत ऐसे अमेजिंग पंजाबी म्यूजिक वीडियोस की क्वालिटी नहीं होती, बट अगर उसमें कॉन्सेप्ट देखोगे तो लाइक वाओ। तो आई फील कि अभी जो भी म्यूजिक वीडियोस चल रहे हैं वो बहुत ही ऐसे एस्थेटिक्स, जेंजी वर्ड्स भी आ गए हैं मार्केट में, बिल्कुल। तो उनके बेस वाले म्यूजिक वीडियोस बहुत अच्छा परफॉर्म ज्यादा कर चल रहे हैं। या राइट। अभी रिसेंटली यू मेड 2 रील्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ क्रिएटिंग द सॉन्ग फॉर माय पोटेंशियल गर्लफ्रेंड। या तो चलो गाने पे तो बाद में आएंगे, पहले ये बताओ उस गाने में कितनी पोटेंशियल है टू गेट योर गर्लफ्रेंड? है? हाँ है, मिल जाएगी बहुत पक्का? अब ये नहीं पता। इंसान तो बस अपनी पूरी कोशिश कर सकता है। बिल्कुल। बट वो गाना है लाइक इफ यू एवर हैड अ क्रश ऑन समवन यू विल रिलेट टू दैट सॉन्ग। फिर तो यार हर दूसरे दिन आता है। क्या ही बोलूं। या बट लाइक व्हेन इज इट कमिंग एंड क्या प्लान है? इट्स कमिंग टुनाइट। Oh, tonight. Yeah. Wow, perfect day to shoot Yeah, this, I would it's say. coming Exclusively on ABP Live podcast. या इट्स कमिंग टुनाइट एंड उसके 2 म्यूजिक वीडियोस हैं। Okay. देयर इज वन टेक म्यूजिक वीडियो जो कि हमने एक टेक में शूट करा है रेडियो सिटी में। Right. एक वो आने वाला है कल शाम को, एंड दूसरा इज अ वेरी लाइक नैरेटिव म्यूजिक वीडियो अच्छा, with the story and विद द स्टोरी concept एंड वाला ऑल। पूरा. या Right. तो वो आने वाला लाइक इन द नेक्स्ट 15 डेज। क्या आप थोड़ा सा हमें हिंट देना चाहेंगे उस गाने के बारे में? कुछ भी. या मैं इसका 4 लाइन सुनाता हूँ, ठीक है, एंड यू टेल मी इफ यू कैन रिलेट टू इट और नॉट। Okay, done. सेटिंग ये है दैट यू लाइक अ गाय, ओके, एंड यू वांना कन्फेस योर फीलिंग्स टू हिम, बट आप कह नहीं पा रही हो, बट आप सारे हिंट्स दे पा रही हो, Been there, done that. बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर इसको सब कुछ समझ में आ रहा है, एक्टिंग कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, Done. व्हाट इज द सिचुएशन। ठीक है. तो इस पे 4 लाइन गोज लाइक, काश ये कह पाता कि दिल में मेरे क्या है, ना कह पाता तुझे पर मेरी आंखों में लिखा है, मेरा चेहरा तू ना पढ़ पाती है कैसा नखरा है, इशारे भी ना समझे या फिर सब तुझे पता है, फोटो तेरा ही तो ताकूं गलियों में तुझी को झांकू, रातें कैसे मैं ये काटूं ये बता भी दे, चाहे जो भी हो झमेले आजा मिलते हैं अकेले, दुनिया बोले जो भी बोले है परी किससे। ऐसा चलता है। क्या बात है, लग रहा है रिलेटेबल तो लग रहा है, थोड़ा ज्यादा ही हिट कर गया, बिकॉज मेरे साथ तो रिसेंटली ऐसी कुछ सिचुएशन हुई थी, सो ज्यादा ही हिट कर गया। कोई बात नहीं, बट होपफुली आपको गर्लफ्रेंड मिल ही जाएगी इससे, आई एम श्योर। आई होप सो। बट इससे पहले डेटिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है आईआईटी में? आईआईटी में यार मैं पढ़ाई करता था बहुत ज्यादा। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता, कॉलेज नहीं, में सच सबने ये सब किया है। डेटिंग वेटिंग, आई मीन लाइक आई हैव बीन ऑन डेट्स, बट ऐसे आई नेवर हैड एनी गर्लफ्रेंड एंड ऑल। राइट। लेकिन वैसे डेटिंग एप्स वगैरह ट्राई किए थे? हाँ, ट्राई किया था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार देखो, जब मैं करता था ट्राई दिल्ली में, तो ऐसा सिचुएशन था कि बहुत ही उस टाइम वो सिचुएशन ही था मेरा कि मैं डेट्स पे पैसे उड़ाऊं, तो मैं जाना प्रेफर नहीं करता था। ऑनेस्टली आंसर दे रहा हूँ, इतना ऑनेस्ट तो कोई आंसर नहीं देगा यार। हर कॉलेज स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि बजट होता है लिमिटेड, और डेट से तुम्हारा दिमाग में आता है कि वो लैविश कैफे हो, बढ़िया कॉफी हो, सब कुछ हो, तो उतना बजट हमारा होता नहीं उस टाइम। एग्जैक्टली। एंड साथ में मेरा ये था रूल कि ये ऑफिस की कॉफी तो पी लो। एंड ये मेरा रूल था उस टाइम कॉलेज में, दैट नाइस, मेरा ये रूल था कि कॉलेज में किसी को डेट वेट नहीं करना है, क्योंकि
अगर मान लो आप मुझे मेरा ये कॉन्सेप्ट है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कि अगर आप किसी को कॉलेज में डेट करते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो जाते हो उस इंसान में। हाँ. तो ना तो आप किसी और चीज़ पे फोकस करोगे, और वो टाइम जो ऐसा होता है एक बहुत ही ओल्ड स्कूल मेंटालिटी व्हाटएवर जो भी कह लो, बट आप पूरा उसी में इनग्रॉस्ड रहोगे एंड फिर कुछ ऐसे ब्रेकअप झगड़ा वगैरह हो गया तो पढ़ाई भी गया, सब कुछ गया। ये बात तो वैसे इसलिए गलत आई नहीं है, फील फैक्ट है. कि इसलिए उस टाइम आई यूज्ड टू लाइक स्टे अवे फ्रॉम दिस एंड बस कोई नहीं, अब मिल जाएगी गाइस, वी हैव एन एलिजिबल बैचलर हियर, कम ऑन यार, डीएम प्लीज, डीएम करो, गर्लफ्रेंड बनाओ इनकी यार, कोई तो हद हो गई. ओके, एंड अब इस टॉपिक पे है ही, तो यू हैड मेड अनदर रील जिसमें था कि यू वांटेड टू कन्फेस टू योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? सो क्या एडवाइस है उन सब लोगों के लिए जो हु हैव फॉलन इन लव विद देयर बेस्ट फ्रेंड्स? शुड दे कन्फेस, या फिर उनको जैसे फ्रेंडशिप का ध्यान रखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी? मैं एक लाइन फॉलो करता हूँ, ये बहुत फिलोसॉफिकल लगेगा. आई बिलीव इन दिस लाइन दैट इंसान को प्यार जताना चाहिए, बताना नहीं चाहिए. ओके, प्लीज डिकोड. इट मीन्स कि अगर वो मान लो फ्रेंड है, अगर तो फ्रेंड नहीं है तो चलो ठीक है बता दिया, ठीक है. बट अगर मान लो सच में फ्रेंड है तो वो तो ऑफ कोर्स वो डर तो रहता ही है कि कोई सिचुएशन ऑकवर्ड हो सकता है. बिल्कुल, अगर ना बोल दिया तो फ्रेंडशिप खत्म हो सकती है. एग्जैक्टली, तो यू जस्ट बी नाइस, जस्ट बी योरसेल्फ. डोंट वॉच एनी यूट्यूब वीडियो हाउ टू कन्फेस टू योर बेस्ट फ्रेंड. हाँ, सब यूजलेस है, ठीक है. And just show your love in the little things, like sweet gestures, be nice, be humble. And अगर सच में डेस्टिनी में होगा that she should be with you, तो उसको एक दिन दिखेगा and चीज़ें अपने आप हो जाएंगी. और अगर ना दिखे तो she was not the one for you. ये बात भी सही है भाई. How I Met Your Mother से टेड मोस्बी की वो कर लेते हैं कि she was not the one for you, but we'll find the one for you. Yeah, exactly. Right. You just mentioned that your music videos have also been made by Sony. Yeah. आपके ऑलमोस्ट recent गाने काफी सारे जो हैं वो सोनी ने पिक करे हैं. So how was that experience like? That was a very crazy experience. The reason was कि जब मैंने मेरा सफर बनाया था ना, उसी के जस्ट बाद एक दूसरा सॉन्ग आने वाला था, ख्वाब. Right. That I did with जो आदित्य. अब रिसेंटली बिल्कुल भयंकर वायरल चल रहा है. मतलब मैं भी आज सुबह से जब से आई वाज रिसर्चिंग, मैं वही गाना गुनगुना रही थी क्योंकि आई लव इट, ऑनेस्टली आई लव इट. So that song is with Aditya, the same guy who sang it in the song चांद बालिया. चांद बालिया. But ये गाना ना मेरा पहला सॉन्ग है. ख्वाब. हाँ, जो मैंने 2015 में लिखा था. I was going to ask you कि सबसे पहला सॉन्ग कौन सा था, तो यही है वो. ख्वाब पहला सॉन्ग था जो मैंने लिखा था अपने IIT JEE प्रिपरेशन डेज में कठवड़िया सराय में. अच्छा. एंड मैंने इसको फिर आदित्य को सेंड किया था कि आदित्य ये गाना ना बेहतर हो सकता है, तो इस पे साथ में कुछ काम करते हैं. फिर हम साथ में बैठे, उसको इम्प्रोवाइज किया एंड बिल्कुल ही अलग बन गया. फील वही है जो ओल्ड सॉन्ग की थी, कुछ लाइंस भी सेम है, बट बिल्कुल नया गाना बन गया ख्वाब. एंड जब ये ख्वाब गाना हमने बनाया था ना, उस टाइम तक चांद बालिया वायरल नहीं हुआ था. फिर बीच में चांद बालिया वायरल हो गया. एंड आई आस्क्ड आदित्य कि आदित्य क्या ये जो ख्वाब वाला गाना है हमारा साथ में है, तो क्या हम सोनी को दे सकते हैं? क्योंकि बाय देन आदित्य वाज विद सोनी. राइट. एंड आई वाज लाइक कि अगर आदित्य उसको पिच कर देते सोनी को एंड सोनी के साथ वो गाना आता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. आई विल बी विद अ लेबल एंड एक अच्छा होगा जो भी होगा. बट आदित्य ने उनको कन्वे कर दिया था कि देयर इज एन आर्टिस्ट कॉल्ड इक्लिप्स, उसके साथ एक गाना है एंड उसको करना चाहिए. बट उन्होंने कभी सोनी वालों को सुनाया नहीं था. अच्छा. ऑप्शन ही नहीं मिला था. नाउ कट टू माई मीटिंग विद सोनी का A&R हेड एंड फॉर मेरा सफर. हाँ, अच्छा, फॉर मेरा सफर. फॉर मेरा सफर, एग्जैक्टली, नॉट फॉर दैट सॉन्ग. फॉर मेरा सफर, व्हेन दे वांटेड टू एक्वायर मेरा सफर. एंड द फर्स्ट लाइन ही सेज वाज कि आई डिडंट नो दैट यू आर द सेम गाय जिसके बारे में आदित्य मुझे पिछले 6 महीने से कह रहा है कि गाना करना है. एंड फिर बाद में मैंने उनको ख्वाब सुनाया उनके ऑफिस में जाके. आदित्य ने. कैसा लगा उनको? बहुत अच्छा लगा. दे लव द सॉन्ग एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू टेक दैट ख्वाब आल्सो. बट ये बहुत अजीब बात है कि मैं चाहता था कि आदित्य उनको सुनाए एंड फिर बाद में मैं सोनी के ऑफिस में बैठ के मैं उनको सुना रहा हूं. डेस्टिनी. एग्जैक्टली. तो बहुत ही अनबिलीवेबल था कि आप ही सुनाओगे. दैट इज व्हाट मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था कि ऐसा होगा, बट डेस्टिनी. एंड उनके साथ काम करना कैसा लगा? लाइक व्हेन दे पिक्ड अप फाइनली योर सॉन्ग एंड थिंग्स वर ऑफिशियल, वो कैसी फीलिंग थी? मेरे लिए तो जैसी फीलिंग थी बट साथ में मेरे आसपास के लोग, लाइक मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, घर वाले, वो इतना ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि इंडिया में लेबल को ऐसे लाइक बहुत ऐसे बड़ा माना जाता है. एग्जैक्टली. अब जाके इंडिपेंडेंट सीन बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है, अच्छी बात है, बट अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है. आउट देयर इन स्मॉल सिटीज़ लाइक कटिहार, द टाउन आई बिलोंग टू, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मेरे उस टाइम पे ना जब मेरा सफ़र आया था तो केसरिया के प्रमोशंस चल रहे थे. अच्छा.
तो my friends will be like would have been like कि अरे भाई नेक्स्ट पोस्ट रणबीर का गया उनके पेज पे, लाइक केसरिया का, एंड उसके जज्बात का तेरा आ रहा है मेरा सफर का, तो बहुत बड़ी बात थी. बहुत बड़ी बात है एक्चुअली. Congratulations. Thank you so much. Can we listen to a couple of lines from ख्वाब? ख्वाब, yeah sure. Live concert, oh my god. हाँ, तो it goes like तेरे पास मैं, मेरे पास तू, अकेला हूँ तो भी तेरे साथ हूँ, मैं टूटा तारा है चांदनी रात तू, जो मैं रात हूँ तो तू ख्वाब है, जो मैं खाली पन्ना तू अल्फाज है, मैं खोया मुसाफिर तो तू छाँव है, ये पहली मोहब्बत का एहसास है. Wow, perfect. This is one of my favorite songs by you. Just by the way, मैंने सब काफी सारे सुने हैं. मैंने मेरी बारी भी सुना है, मेरा सफर भी सुना है, but ख्वाब, I don't know, I just love it. So seeing you sing it live in front of me was a treat for me, honestly. Means a lot. Thank you so much. It is just amazing. Okay. अब you have been into music काफी टाइम से, right? So कोई ऐसा singer या artist that you really like? इंडियन, कोई भी, इंडियन, इंटरनेशनल, कोई भी. या मुझे जस्टिन बीबर बहुत पसंद है, being honest, and I started Your hairstyle reminds me of 13-14 years वाला Justin Bieber. And I started singing listening to Enrique Iglesias. तो मुझे अभी भी उसके गाने बहुत पसंद है. अभी वाले तो फिर भी चलो ठीक है जैसे भी हैं, बट पुराने वाले जो टाइम थे ना, लाइक जब वो हीरो, early 2010, 11-12 के आसपास, हीरो, Somebody's Me, वो वाला जो टाइम था वो हो गया. फिर इंडिया में ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह को तो आप अनहर कर ही नहीं सकते, तो उनको तो लाइक सुनना ही है, सुनो ना सुनो. सो या दीज आर्टिस्ट्स आई रियली लाइक फॉर श्योर. एंड अभी जैसे यू मेंशन दैट इंडी आर्टिस्ट्स का एंड इंडी म्यूजिक का बहुत ज़्यादा कल्चर आ रहा है, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज आई थिंक past 1.5-2 years में हमने ये चीज़ देखी है, that a lot of indie artists are coming and people are absolutely loving their songs. Yeah. I think this thing started somewhere around with Anuv Jain, and then उसके बाद से it has been rising. So what do you think about that? Anuv Jain भी like I think he released बारिशें 2014, 13, 15 ऐसे कुछ बहुत साल पहले, अब जाके वो पिक हुआ. तो I feel it's really amazing because इंडी के साथ ये सीन है ना कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, मतलब सिंपल है कि आप अपने आप करना है, अपने आप कर सकते हो. या इट्स ऑल ऑन यू, एंड थैंक्स टू प्लेटफॉर्म्स लाइक टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम किसका आने पॉसिबल हो पाया. कि आज के डेट में किसी सॉन्ग को वायरल जाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे डालने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू यूज योर क्रिएटिविटी राइट, इफ यू यूज योर ब्रेन राइट एंड यू मेक अ डांसिंग रील इन द रेन, इट कैन गो वायरल एंड मेक यू like a viral sensation, pop sensation, as you mentioned and as you wanted to be, you became it. तो आप बस थोड़ा सा क्रिएटिविटी यूज करो एंड खुद से आप कर सकते हो. तो दैट्स जस्ट अमेजिंग आई फील. राइट. एंड अभी ऐसा टेस्ट हो गया मुझे लगता है म्यूजिक का ना, एक बहुत ही फेमस वर्ड आ गया हमारे ना, वाइब. दैट if that song is setting a certain emotion in you, तो उसमें बहुत 1000 इंस्ट्रूमेंट्स की भी जरूरत नहीं है. जस्ट वन गिटार, योर वॉइस and good lyrics is just fine. Right. अनूप के गाने देख लो कितने सिंपल होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं. एंड पता नहीं, आई डोंट नो बाकी लोगों को ये बात लगती है नहीं, बट आई हैव अ फीलिंग कि उनके सब गानों में ना एक सिमिलर वाइब होती है. डू यू थिंक सो? Yeah, of course. एंड somehow वो पहली बार में जो शायद बारिश से जो कनेक्ट हो गया ना, आई थिंक इट हैज बीन कंसिस्टेंट ओवर द टाइम. Yeah. I think that is to some extent the case with you also, but your genre sort of changes, keeps that changing. I've consciously done because I have a feeling now, मतलब मैं ना बहुत अलग-अलग टाइप के आर्टिस्ट को सुनता हूँ. I told you the artists who I like, but अगर मैं सुनने की बात करूँ तो मतलब I listen to Divine also, फिर I listen to Anuv also, and I listen to some random rapper in Africa also. Yeah, exactly. तो उस चक्कर में ना, क्योंकि मुझे सारे टाइप के म्यूजिक सुनना पसंद है, तो ये मेरा गोल था कि मैं हर टाइप के सॉन्ग्स बनाऊंगा. राइट. एंड नॉट जस्ट व्हेन इट कम्स टू लिरिक्स, बट आल्सो व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ म्यूजिक एंड द टाइप ऑफ वाइब दैट इज स्प्रेडिंग. राइट. तो वो मैं कॉन्शियसली करता हूँ कि गाना मेरा सेम साउंड नहीं करना चाहिए, बट स्टिल यू विल फाइंड एन एलिमेंट ऑफ मी. राइट. आपको पता चल जाएगा, समझ आ जाएगा. दैट इज वेरी ट्रू. एंड लाइक जो गाने आप बनाते हो एंड जो आप गाते हो, that are very different from classical music that you are learning at the moment. तो classical music सीखने का कैसा experience रहा है अभी तक, and do you plan on venturing into classical music at some level or no? So basically I feel in the end of the day
अभी तो देखो मैं बहुत इनिशियल स्टेज में हूँ सीखने के, तो फॉर श्योर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता कि अंदर और कितना जाना है और क्या कर सकते हैं, बट मुझे इतना पता है कि इन द एंड ऑफ द डे द मोस्ट बेसिक थिंग अबाउट सिंगिंग अ सॉन्ग इज कि आपको बेहतर करेक्ट नोट सेट करने होते हैं, नंबर वन। अगर आपने करेक्ट नोट सेट कर लिया, फिर यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस दैट इमोशन। हो सकता है कि आपने नोट्स करेक्ट हिट किए हो, बट वो फील होता है ना, फील नहीं आ रही, तो वो उसके टेक्निक्स होती हैं कि आप ज़्यादा एयरी बनाओ या कुछ करो, तो फिर आप उसमें घुसते हो, एंड उसके बाद फिर ब्रीदिंग कंट्रोल करते हो, डायनेमिक्स लाते हो, तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिक्स है। राइट। अभी फिलहाल आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द बेसिक्स, Right. कि मैं नोट्स करेक्ट हिट कर लूँ, मैं ऑफ ना जाऊँ बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा शार्प ना जाऊँ। जब ये हो जाता है तो डेफिनेटली आई कैन ट्राई टू गो डीप इनटू इट, बट अभी के लिए माय बेसिक्स इज लाइक मुझे इसको बहुत अच्छा करना है, क्लियर करना है, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली गाने अच्छे बनेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि द काइंड ऑफ सॉन्ग्स एटलीस्ट आई मेक एज ऑफ नाउ, उसमें बहुत डीप क्लासिकल की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट माय आइडिया वाज, कि मतलब वो बहुत डिफरेंट है। एटलीस्ट अब मैं कोई म्यूजिक वाली बंदी नहीं हूं, एज सिंपल एज दैट। आई एम नॉट अ क्लासिकली ट्रेन्ड सिंगर, राइट? आई हैव नो नॉलेज ऑफ इट। सो मे बी उसकी अंडरलाइंग चीजें ऑब्वियसली होंगी उससे। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक वन शुड नो कि उनको किस टाइप का सॉन्ग्स गाना है, एंड दे कैन प्लान देयर ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू दैट। फॉर एग्जांपल मैंने अरमान मलिक को किसी एक पॉडकास्ट में सुना था ये कहते हुए दैट द काइंड ऑफ सॉन्ग्स ही सिंग्स इज नॉट टोटली क्लासिकल, नॉट टोटली वेस्टर्न, जो बॉलीवुड के गाने में गाता है, समवेयर इट्स इन बिटवीन, एंड दैट्स व्हाई ही हैज दिस स्पेसिफिक म्यूजिक टीचर जो कि उनको इस तरीके से ट्रेन करती हैं कि वो उस टाइप का गाना गा सके, व्हिच इज जस्ट अमेजिंग। तो इफ यू नो, उनके दिमाग में क्लैरिटी थी कि उनको वैसे गाने सीखने करने हैं, तो उन्होंने वही चीज सीखी। एग्जैक्टली। तो अगर आप मान लो कि बहुत क्लासिकल में घुस जा रहे हो, आप 8 साल करके निकलोगे, दुनिया के बेस्ट क्लासिकल सिंगर होंगे, बट शायद आपको उस टाइप का गाना ही नहीं गाना है। हाँ, क्योंकि अडेप्ट करना बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे, कभी भी जब भी, क्योंकि फाउंडेशन क्लासिकल। एग्जैक्टली, आई थिंक यू शुड हैव अ क्लैरिटी कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके से आप खुद को देखते हो, कहाँ गाते हुए देखते हो, क्या गाते हुए देखते हो। बिल्कुल, एंड आई थिंक अगर अडेप्ट अच्छे से कर लिया जाए तो इवन क्लासिकल म्यूजिक या इवन फोक म्यूजिक बहुत अच्छे से ढल सकता है। जैसे कि हमने देखा अभी रिसेंटली मिसमैच जो एक सीरीज आई थी, उसमें ये फोक गाना था मेहमा, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक गाने का नाम यही है। इट वॉज अ फोक सॉन्ग, राजस्थानी फोक सॉन्ग, एंड उसको इतने अच्छे से उन्होंने पूरा चेंज कर दिया था, रीमिक्स कर दिया था कि पीपल लव्ड इट। या अभी वो बादशाह के एक सॉन्ग में सनक में जो हुक है, राइट, फोक एंड साउंड्स सो अमेजिंग विद द बीट्स। एग्जैक्टली। तो अगर अच्छे से अडेप्ट किया जाए तो बहुत अच्छे से उसको परफेक्टली ऐसा एक वायरल सेंसेशन टाइप चीज क्रिएट की जा सकती है। फॉर श्योर। एंड अब म्यूजिक से थोड़ा हट के अगर हम बात करें, द कंपनी दैट यू वर टॉकिंग अबाउट, जो आपने स्टार्ट की थी विद रणवीर अलाहाबादिया, वो कैसे हुआ, एंड लाइक हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग, वो भी म्यूजिक भी सब कुछ कैसा चल रहा है, एंड व्हाट इज इट एग्जैक्टली? सो वी मेक कंटेंट फॉर आवरसेल्व्स फॉर यूट्यूब, एंड अभी हमने बहुत ज़्यादा हॉरर बनाना शुरू कर दिया है। हाँ, राइट। आई वाज गोइंग थ्रू द पेज एंड मेरे को बहुत डर लगता है हॉरर से, तो मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है। प्लान ये है कि विल कीप ऑन चेंजिंग द कंटेंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट ऑडियंस वांट्स, व्हाट दे लाइक एंड हाउ इज इट वर्किंग। तो अभी हॉरर पीपल आर लाइकिंग इट ऑन यूट्यूब एंड ऑल, राइट? तो इसलिए अभी हम हॉरर बना रहे हैं, आगे का लेट्स सी हाउ इट गोज। एंड साथ में वी आल्सो प्रोड्यूस कंटेंट फॉर डिफरेंट स्टार्टअप्स एंड कंपनीज। अच्छा, ये भी हम करते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज कंपनी हु नीड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट कि उनको ये शूट करना है, एडिट करना है, काइंड ऑफ लाइक प्रोडक्शन हाउस, दैट आल्सो वी प्रोवाइड। ओके, सो दिस इज व्हाट इज इट। सो ये जो हॉरर की रिसर्च करते हुए सबसे ज्यादा हॉरर वाली चीज क्या पता चली, या फिर ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज क्या पता चली? हॉरर की रिसर्च करने के टाइम जो भी मैंने टीम के साथ बैठा हूँ, तो वो कॉन्वर्सेशन इतने वियर्ड होते हैं ना, कई बार तो मतलब मैं क्रीप आउट कर जाता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्वर्सेशन लाइक कि ये स्क्रिप्ट मिली है, ये टॉपिक मिला है जिसमें कि इस बंदे ने इतने लोगों को मार दिया, फिर ये डेड बॉडी ये मार के खाता था, ये डेड बॉडीज के साथ ये करता था, तो बहुत ही वियर्ड होते हैं। फिर उसमें से भी चूज से बाप रे। तो लाइक डू यू लाइक हॉरर स्टोरीज वैसे? Depends. If I'm alone, then I don't. I think that is the case with everyone. Yeah. सबकी जान निकलती है। फिर मुझे भूत दिखने लगते हैं आसपास, इसलिए मैं तो भाई हॉरर मूवीज देख भी नहीं सकती। मैंने एक बार यही देखी थी, अंदर उसके अंदर को 10 दिन तक नाइटमेयर्स आए थे। तो मेरी बहुत लड़ाई होती है मेरे दोस्तों से कि भाई वो जानबूझ के मेरे को बोलते हैं कि नहीं देखा, ना नो थैंक यू, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती। मैं जब छोटा था ना, तो बचपन में मैंने राज मूवी देखी थी। राज ही तो है आपके पेज का नाम अभी एट द मोमेंट राज है। तो बचपन में मैंने राज मूवी देखी थी, एंड मैं 5-6 साल का था, एंड मुझे इतना ज्यादा डर लग गया था कि मुझे एक्चुअली बाबा एंड ऑल के पास लेके जाना पड़ा था। मैं एक ताबीज पहनता था, अब वो प्लेसिबो की तरह काम करता था या क्या करता था मुझे नहीं पता, बट एक्चुअली मुझे बहुत डर लगता था। करीब 2 साल तक मैं अंधेरे में जाता ही नहीं था। मुझे वो मूवी सोते कैसे थे यार? बहुत प्रॉब्लम हुई थी बचपन। या बट वैसे डू यू बिलीव इन दीस थिंग्स? डू यू बिलीव इन घोस्ट्स एंड सोल्स एंड स्टफ लाइक दैट? यू डू? होते हैं मतलब?
I don't know. Yeah, I could feel- never bring I f- myself to believe it. I believe in it. In the end of the day, everything is a form of let the IITian talk. Yes, exactly. It's all about energies, right? अब फॉर एग्जाम्पल हाउ कम यू एंटर अ प्लेस एंड आपको कहीं पे बहुत ऐसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि कितना सुंदर डेकोरेटेड है हाँ, नहीं उससे फर्क नहीं एंड देन एट द सेम टाइम यू एंटर अनदर प्लेस जहाँ पे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो इन द एंड ऑफ द डे आई फील कि इट्स ऑल एनर्जीज कि कुछ पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं एंड द सेम वे पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं बिल्कुल. तो इफ वी से कि गॉड एग्जिस्ट्स तो आप Devil also exists. या then. तो आप सारे आप इतना दिमाग ही मत लगाओ कि सोल क्या एंड ऑल दैट बस ये कि पॉजिटिव जितनी चीजें हैं पुट इट इन द गॉड साइड Right. नेगेटिव जितनी चीजें पुट इट इन द घोस्ट साइड एंड वैसे कभी ऐसा कोई री एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में? नहीं कोइंसिडेंसेस बहुत हुए हैं अच्छा, जैसे बहुत- कोई इफ एनी दैट यू वुड लाइक टू शेयर. ये ख्वाब वाला भी एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था I हाँ. feel. तो आई फील जैसे ये कोइंसिडेंसेस एंड ऑल होते हैं डीजा वू एंड ऑल होता है तो आई फील सारी चीजें कनेक्टेड हैं बिल्कुल. फॉर Yeah. एंड ड्यूरिंग योर डेज इन IIT कोई एक ऐसा बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट जो दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? IIT डेज में द टाइम दैट आई यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट वाज द फेस्ट हाँ. क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था एंड सबके अपने रीजंस होते थे फेस्ट को एंजॉय करने के मेरे रीजंस ये होते थे कि फेस्ट के टाइम में बहुत ज़्यादा स्टेज पे रहता था आई यूज्ड टू होस्ट अ लॉट ऑफ इवेंट्स एंड मेरे लिए वो बहुत फन की बात रहती थी क्योंकि बाकी पूरा सेमेस्टर होता था कॉलेज का सिर्फ पढ़ाई हर दिन एग्जाम असाइनमेंट अरे यार बहुत टेंशन तो फेस्ट के टाइम मुझे जो वो था ना कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है वो मैं एक्चुअली फील करता था तो दैट्स व्हाई मेरा बेस्ट टाइम तो फेस्ट होता था फेस्ट होता था. Yeah. राइट. एंड अब कैसा लगता है कि व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दोज इवेंट्स बट नॉट एज अ होस्ट एज Yeah. अ गेस्ट तो Yeah. कैसी फीलिंग आती है? बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है और बहुत अनबिलीवेबल सा लगता है क्योंकि इट्स एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू मतलब वो कहता है ना एग्जैक्टली यही सोचा एग्जैक्टली वही हो गया फिंगर्स क्रॉस टच वुड अरे ये तो शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है. या तो बहुत अनबिलीवेबल था लाइक अभी पिछले ही साल मैं उसी स्टेज पे मैंने परफॉर्म करा फॉर द सेम इवेंट जिसमें मैं रणवीर से मिला था या जिसमें मैं रणवीर से मिला था इट्स अ इवेंट कॉल्ड यूट्यूबर्स यूनाइटेड तो पिछले साल की बात है पिछले से पिछले साल की बात है तो दे इनवाइटेड मी एज गेस्ट एंड उसी इवेंट में मैं होस्ट था मैं रणवीर से लाइफ मिला केम अ था फुल सर्कल. या तो इट वाज अ बिग डील बहुत ही It is a big deal. Again, kudos to you. You have made it for yourself through your hard work. Yeah. And ये बस शुरुआत है. Believe me. I hope so. अभी तो सिर्फ कुछ गाने वायरल हुए हैं. अभी तो सारे गाने वायरल होना रहता है. इसी साल मुझे 6 गाने और रिलीज करने हैं आधा साल निकल चुका है. आई हैव द सॉन्ग्स रेडी अरे तो बाप टेंशन रे. नहीं But धीरे. या कोई नहीं. Looking forward to some more fun and viral reels. Yeah. जो कि definitely होने वाली है. All thanks to your songs. आई होप सो सो अब इस कॉन्वर्सेशन को एंड करने से पहले थोड़ा सा और गाने हम गवाएंगे आपसे ठीक है. इन अ गेम. इट्स कॉल्ड म्यूजिक. इट्स जस्ट अ म्यूजिकल गेम इन विच मैं आपको कोई भी सिचुएशन दूंगी एंड यू जस्ट हैव टू सिंग अ सॉन्ग फॉर इट. ठीक यू है. डोंट हैव टू से एनीथिंग. सिंपली सिंग अ सॉन्ग फॉर इट. ठीक है. ठीक है. ठीक है. सो द फर्स्ट वन इज अ सॉन्ग दैट यू लव डांसिंग टू. मेरा जो सफर है गा दो. कोई नहीं. डू चेक इट ऑन Spotify guys it's a great song यस गाइस डू चेक इट आउट प्लीज. अभी तो पार्टी शुरू हुई है ओके गा के सुनाना पड़ेगा. अभी तो पार्टी शुरू हुई है बाद में ना कहना कुछ भी पहले ही दे दूं वार्निंग पार्टी चलेगी till 6 in the morning जी भर के नाच ले बेबी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल. ओके. अ सॉन्ग दैट गेट्स यू हंग्री. song that gets me hungry it's a song by Aditya Okay. Mochaccino have you listened to the song सुना है मैंने. It's an amazing song. It goes like वो घूरे जब जोक मैं सुनाऊं वो हंसती नहीं देखे वो जैसे मार देगी मुझको मैं डरता नहीं वो पिए मोकाचिनो मैं पीऊं ठंडा पानी सुना गया मैं उसे पूरी जिंदगानी. Perfect. Okay. A song that you will use to woo a girl. Now I have a song. Arzu. बिल्कुल. Of course. अब तो है. I think it's a song. It's called "You Are Beautiful" by James Blunt. Have you heard the song? Yeah, I have it. That's a good song. Please do the honors. my guess start together. My love is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled me at the subway. She was with another man. This is the beauty of the song, that she's with another man. Still he's in love and he's not sad about it. Right. Because he's saying, "You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face
in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Okay. A song that you listen to when you're heartbroken. When I'm heartbroken, लग रहा है कभी हुआ ही नहीं मैं. When is Heartbroken, I listen to this song. Generally, I listen to very motivational songs. it? Okay. Heartbroken in terms of love or what are you saying? Love. मतलब In किसी general, तरह वैसे किसी अगर मैं तरह हो sad, सकता है. हाँ. तो I love to listen to very ऐसे बहुत motivating songs. Okay. And there is this song called मैं हूँ सनम Okay. पुरी. I think Amazing I've- Spider-Man का के promotion हाँ बनाया गया था. हाँ right. I think I've heard it. नाम सुना लग रहा है. या मैं हूँ. तो उसमें लाइंस ऐसा है कुछ मैं हूँ वो आग जो कभी बुझे ना, मैं हूँ वो चट ऐसे कुछ है, बट इट्स वेरी लाइक वेरी मोटिवेटिंग तो दैट्स व्हाट मैंने पहली बार सुना है एंड देखा है कि मतलब हार्ट ब्रोकन फीलिंग के बाद भी समवन इज जस्ट यू नो मोटिवेशनल सॉन्ग्स. एक और भी है, दिस सॉन्ग कॉल्ड यंग शाहरुख अच्छा, बाय okay, ये टेशार नहीं करके एक बंदा है. ओके. तो दिस सॉन्ग का मुझे लाइन आने से रैप सॉन्ग, अच्छा. बट उसका लाइन इज जो मेन हुक लाइन है, इट्स लाइक आई फील लाइक शाहरुख खान, 20,000 फैंस इन माय लाउंज एंड आई फील लाइक शाहरुख खान. तो ये बहुत ही ऐसे वो वाइब देता है कि भाई ठीक है, मतलब बाहर निकालने के लिए फ्रॉम योर हार्ट. या दैट इज अ वेरी नाइस थिंग. गाइस डू दैट. रोने धोने वाले गाने से अच्छा है ऐसे गाने एग्जैक्टली. सुनो. हाँ, मेक्स मोर सेंस. सैड सॉन्ग नहीं सुनता मैं. नहीं सुनते. नहीं. चलो कोई नहीं. होगा लास्ट वन. अ सॉन्ग दैट यू विल डेडिकेट टू योर बेस्ट फ्रेंड. टू माय बेस्ट फ्रेंड. मेरे दिमाग में गाना आ रहा है बट वो गा नहीं सकते. अच्छा. टू माय बेस्ट फ्रेंड. हाउ इज माय बॉन्डिंग विद माय बेस्ट फ्रेंड? दैट यू हैव टू डिसाइड. टू माय बेस्ट फ्रेंड कुछ फनी सा समथिंग. फिर मौका चीनो ओनली. वही लाइक मैं मोस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स लाइक दैट ओनली. अच्छा. ओके. वो घूरी जब जोक मैं सुनाऊं वो हंसती नहीं, देखे वो ऐसे ऐसे मार. मैं तो ऐसी दोस्त नहीं हूँ. मैं तो दोस्तों के लेम से लेम जोक पे भी हंस देती हूँ. अच्छा. मतलब दिल रखने के लिए कि मैं हुई ऐसी मेरी हंसी छूट ही जाती है. फिर दिस इज अ गुड सॉन्ग. वो देखने में क्या सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है. तेज तो मैं हूँ. Thank you so much Eclipse for coming today and being such a sport. मैंने आपसे बहुत गाने गवाए and आपने सारे खुशी से गाए. That was the best part I would say. It was really nice talking to you. Same here. Thank you so much. I'm so glad that you enjoyed and keep listening to Bollywood Binge and Beyond with me Niharika Nanda on ABP Live podcasts. Yeah.